ওখানে বসতে পারো, বসতে দাও না, আপনি দেখ। এই এদিকে সরে এসো, বুড়ি সরে এসো, এই ধারে সরে এসো। এই যে তুমি উপরে এসো, মাইকটা সরিয়ে দাও, তুমি আরো এগিয়ে এসো। দেখা করো, তোমার বাবাকে বসতে দাও, করতাল বাজাতে দাও। এই এটা এই বুড়ি, এটা সরিয়ে এখানে রাখো। হ্যালো, সমস্ত ভক্তবৃন্দ, প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে। আর প্রোগ্রামের আগে আপনাদের জানানো হচ্ছে যে আজকের যে প্রোগ্রাম, এই আমাদের হল উদ্ঘাটনের অনুষ্ঠান অমৃত যোগ মহেন্দ্র যোগের সন্ধিক্ষণে এটা শুরু হচ্ছে। আপনারা সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। এই আশ্রমের এই যে দেখুন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান, যেখানে আমি বসে আছি সেই জায়গাটাকে দেখতে পাচ্ছেন। চল শুরু করো। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন, আমি একবার দেখাচ্ছি আপনাদের। আরো মাইক্রোফোন আছে তো, নতুন মাইক্রোফোন আরো আছে তো, মাইক্রোফোনটা এই ফ্যান দুটো চালিয়ে দে, ফ্যান দুটো চালিয়ে দে। এই সারা হলটা তোলো, হলটা আগে তোলো। কি ও গৌর, এই লাইট জ্বলেছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, এই লাইটটা এই ওদিকেই চলে গেছে। এই বাজাও, করতাল বাজাও, করতাল বাজাও, করতাল। छोटा करताल ले लो, उनके हाथ से ले लो, वो बेताल बजा रहे हैं। इधर से आ जाओ, बैठ जाओ। সবাই অনলাইনে চলে আসুন, প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে। তোমার করুণা সারো
ভজন গাও একটা, সেখানে এতদিন নেই কিছু গাইতে হবে না, ফ্রি ভজন গাও। না গাইতে পারলে ছেড়ে দে। ভূতনি কি ভালো, চলো। হ্যালো, কিছু বিশেষ কথা বলবার জন্য আজকের প্রোগ্রাম। এখন ভূত প্রেত নিয়েও কাজ করতে হয়, তো সেই জন্য ভূত প্রেতদেরকে অনেক সময় ধমক না দিলে কথা শোনে না। জীবের গঞ্জত, পৃথিবীতে অপদার্থ জীব অনেক জন্মায়, কাজের লোক। পদার্থ আর অপদার্থ দুরকম থাকে না, পদার্থ অপদার্থ। সেই জন্য আজকের একটা শ্লোক নিয়ে বলবো। আপনারা জানেন আগামী 3রা অক্টোবর থেকে 5ই নভেম্বর বিশেষ প্রোগ্রাম, তার প্রস্তুতি পর্ব চলছে। স্টেজ আদি কিভাবে কি হবে এখনও এগুলো প্রাথমিক স্তরে আজকে রেডি করা হয়েছে। বেশি সময় নেওয়ার টাইম নেই, কারণ এত সময় ধরে প্রোগ্রাম কেউ শুনবার জন্য ধৈর্য নিয়ে বসে থাকে না। এখানে ভাগবত হবে অন্যরকম, তার প্রস্তুতি বিভিন্ন মিউজিক সিস্টেম সবই থাকবে। আজকের সেটা আমরা জোগাড় করিনি, শুধু হলটা উদ্ঘাটন করবার জন্য এই প্রোগ্রাম হচ্ছে। তাই প্রথমে আমি একটা বেদের মন্ত্র দিয়ে, স্বস্তি বাচন দিয়ে প্রোগ্রামটাকে শুরু করব। ও शन्नो मित्रः सन्नो वरुणः सन्नो इन्द्र बृहस्पति सन्नो भवत्यर्यमा सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु तद्भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अग्निमिलपुरोहितं यज्ञस्य ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रवृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न दक्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्वौ शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः तेजः शान्तिः औषधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिः शान्तिरस्तु धृतिरस्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्वाग्रे আমার परमाराध्य गुरुदेव भक्ति हृदय বনদেব গোস্বামী মহারাজের চরণ কমল বন্দনা করে তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। সমস্ত ভক্তবৃন্দ, বিদ্বৎ সমাজ, বৈষ্ণববৃন্দ, স্নেহময়ী করুণাময়ী বাৎসল্যময়ী মাতৃশক্তি, সবাইকে জানাই আমার হার্দিক অভিবাদন। আপনারা যারা এই বিশেষ প্রোগ্রামকে দেখছেন, আজকের এই উদ্ঘাটন প্রোগ্রামকে দেখছেন, এই লাইটিং সিস্টেম ঠিক হয়নি, একদম না। কারণ লাইটিং সিস্টেমটা মানে এই স্টেজের জন্য লাইটিং যে ব্যবস্থা হয় সেটা এরা জানে না। তো আমরা টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করা লোক, তো এই স্টেজের কিভাবে লাইট লাগাতে হয় সেই ধারণাটা নেই। হলটা সাজিয়েছে, অপূর্ব সাজে সাজিয়েছে, হলের কোনো ত্রুটি হয়নি। কিন্তু এই স্টেজের প্রোগ্রাম করবার জন্য যে লাইটিং সিস্টেম লাগে সেটা অনেক অনুভব লাগে। বড় বড় চ্যানেলে যে প্রোগ্রামগুলো হয়
সেই প্রোগ্রামের যে লাইটিংগুলো হয় সেগুলো এইরকম হয় না, এইরকম হয় না। এইরকম এই হাতটা তুললাম, এই যে দেখছেন একটা ছায়া পড়ছে, এরকম ছায়া পড়লে কোনো বড় চ্যানেল সেই প্রোগ্রামকে দেখায় না। যাই হোক, এটা একটা আমাদের ঘরের প্রোগ্রাম। এই লাইটিং সিস্টেমগুলো আমরা ভবিষ্যতে অন্যরকম করব। যে লাইটিং আপনারা দেখছেন এটাতে আই অ্যাম নট স্যাটিসফাইড অ্যাট অল। সেই জন্য যাই হোক, মনে রাখতে হবে যে আমরা আজকের ভাগবতের আমাদের সবাইকে নিয়ে একটু ফোন করে আমাদের ঠিকাদারটা সবাইকে একটু ডেকে নেওয়ার তাড়াতাড়ি চলে আসুন, বাইরে গিয়ে ফোন করো, আমাদের এই প্রোগ্রাম দুটোতে চলছে, কোনো অসুবিধা নেই, সবাইকে ডেকে নাও। আমাদের জানতে হবে যে ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে, প্রথম শ্লোকটা ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রথম দিনেই কঠিন হয়ে যাবে। ওটা ভাগবত যারা আজকাল পাঠ করে না, ভাগবত সপ্তাহ, কিছু কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাগবত সপ্তাহ করা কথাবাচক আছে, তারা প্রথম শ্লোকটা জানেই না, मुखस्थही नहीं, कंठस्थ नहीं, ये सारे बेकार के लोग हैं। भागवत का पहला श्लोक जो जानता नहीं वो भागवत कथावाचक हो गया, दूसरे श्लोक जो जानता नहीं वो कथावाचक हो गया। ऐसा कैसे होगा? दूसरे श्लोक के ऊपर हम आज व्याख्या करना चाहेंगे। धर्म प्रज्जित कई तव। धर्म, धर्म क्या है? धर्म वही है जो हमारे लिए जरूरत है। समझ लीजिए, ध्री धातु में मन प्रत्यय करने पर धर्म पद निष्पन्न होता है। धर्म का मतलब होता है जो धारण करे, जो हमारा रक्षा करे। धर्मम रक्षति रक्षितः। तुम धर्म का रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। और धर्म क्या है? जिस वस्तु का जो स्वभाव है, नेचुरल हैबिट ऑफ ये मटेरियल थिंग्स, ये जगत के जो भी वस्तु हम देखते हैं उन वस्तुओं का जो नेचुरल हैबिट है, माने स्वाभाविक स्वभाव है, वही उसका धर्म है। जैसे मोबाइल है, इसका धर्म है फोटो को खींचना, अगर चालू कर दिया तो फेसबुक में सारा प्रोग्राम जा रहा है। यहाँ पर आपका वाईफाई लगा हुआ है, इतने सारे लाइट का व्यवस्था किया हुआ है, सब कुछ। तो ये लाइट का व्यवस्था तभी ठीक है जब लाइट ठीक से जले। अगर लाइट ठीक से जले नहीं तो वे लाइट का क्या काम का। इसी प्रकार धर्म वही है जो हमको रक्षा करे, जो हमारे विवेक को रक्षा करे। समझ गए? विवेक को, बुद्धि को, हृदय को, चेतना को, शरीर को, सबसे रक्षा करता है। शरीर का धर्म होता है 8। शरीर का धर्म होता है क्या क्या? कभी सुना है? क्षुधा, तृष्णा, जरा, व्याधि, शोक, मोह, भय और मृत्यु। ये 8 शरीर का धर्म है। शरीर से यही सब होता है। जब हमने जन्म लिया तो जन्म लेते ही रोने लगे, फिर उसको शहद चटाया गया, बोलिए इसके मुंह में थोड़ा सा मधु दो, तो शहद, कोई कहता है कि शहद के साथ थोड़ा घी मिला के विमिश्रण करके दे दो, अच्छा होगा। जो भी करता है, इसलिए कहा गया है, ध्यान देने योग्य बात है कि धर्म प्रज्जित कई तव। धर्म क्या है? जिसमें कोई कपटता ना हो। साधु बना, साधु का वेश धारण किया, लेकिन कपट भावना से अगर साधु चले तो वो साधु नहीं है। पगड़ी लगाया, महाराज का तो 19 साल की उम्र में वृंदावन में संन्यास लिया। उम्र, संन्यास का उम्र कितना हो गया? आज 68 साल का उम्र है। इसका मतलब 49 ईयर्स, 49 साल हो गया संन्यास लिए हुए। तो समझ लो कितने दिन। ये जो लड़की बैठी हुई है, इसका जन्म नहीं हुआ, उससे पहले हमने संन्यास लिया। तो इसलिए जीवन क्या है? सत्य को जानना ही जीवन है। यदि कथावाचक सत्य को ना जाने, भागवत के पहले श्लोक में ही कहा है, सत्यं परं धीमहि। परम सत्य का हम सब ध्यान करते हैं। व्यासदेव का शब्द है, व्यासदेव पहले श्लोक में कहते हैं
हम धीमहि माने हम सभी ध्यान करते हैं किसका? परम सत्य का, जो नित्य सत्य है, जो कभी बदलते नहीं है। हम लोग जैसे बदलते हैं, जन्म लिया एक रूप है, जन्म लेने के बाद फिर कुछ दिन के बाद कुछ चेंज हुआ, कुछ पहचानने लगे, पापा पापा बोलने लगे, माँ माँ बोलने लगे, धीरे धीरे और बड़े हुए, फिर चलने लगे। ये धीरे धीरे जो होता है तो वो जीवन का परिवर्तन है। एक एक काल है, शैशव शिशु काल, किशोर किशोर काल आ गया, फिर यौवन आया, फिर प्रौढ़ काल आया, फिर एक काल आता है वो है मृत्यु काल। तो ये शरीर के साथ ये सब जुड़ा हुआ है। क्षुधा तृष्णा जरा व्याधि शोक मोह भय और मृत्यु, ये शरीर का 8 धर्म है। इसे ध्यान देकर सुनिए। इसलिए शरीर का 8 धर्म है। क्या कहा गया? मन का 3 चीज इसमें है शरीर के अंदर। एक तो ये मटेरियल बॉडी है, ग्रॉस बॉडी, जो खून से मांस से हड्डियों से ये शरीर बना हुआ है। लेकिन पंच तत्व है, चिति आप तेज मरुद बोम, ये 5 तत्व मिल करके शरीर बना। याद रहेगा तुम्हारा? 5 तत्व मिल करके शरीर में क्या है? तुमको आगे जला दिया जाए तो क्या रहेगा? कुछ मिट्टी रहेगा। जो पानी तत्व है वो जल के आसमान में चला जाएगा। 5 तत्व है, क्षिति माने मिट्टी, तेज माने अग्नि, जल तो शरीर का जो जल तत्व है वो बाष्प होके उड़ जाएगा या नीचे गिर जाएगा। जल, किति, तेज और मरुत माने वायु, वायु के बिना हम जी नहीं सकते। वायु सांस हम लेते हैं तभी तो जीते हैं, अगर सांस बंद हो गया तो हम मर गए। तो इसलिए वायु और खम माने आकाश आसमान, शरीर के अंदर कुछ खाली जगह है। नहीं तो ये जो सांस लिया तो कहाँ गया? खाली जगह ना हो तो कैसे घुसता? और शरीर में खाली जगह है, इसलिए पंचतत्वात्मक शरीर कहते हैं। शरीर है 5 तत्व का, समझ गया? क्या समझा? 5 तत्व का शरीर बना है, क्षिति तेज और मरुद बोम। तो ये तो शरीर है, ग्रॉस बॉडी, खून मांस का बना हुआ। दूसरा है जो हमारा मन है, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, भूमिराप अनलो वायुखंग मन बुद्धि रेवच अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये 8 वस्तु जो है, भूमि रापो अनलो वायु खंग माने कीति तेज ऑफ मरुद्बम, और 3 तत्व है सटल बॉडी। पढ़ते हो पंडित? पूछेंगे हम, जो प्रवचन सुन रहे हैं इसके बारे में पूछेंगे तुमको, क्या पढ़ते हो? हमको प्रश्न का जवाब देना होगा, नहीं तो लकड़ी है, डंडा है। मन बुद्धि और अहंकार, ये सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर। मन बुद्धि और अहंकार ये तीनों है, लेकिन वो हमको दिखता नहीं है। शरीर तो दिख रहा है, लेकिन मन क्या सोच रहा है वो कोई नहीं देखता। देख सकता है? मन जो सोच रहा है उसे कहते हैं पश्यन्ति शब्द, वो भी दार्शनिक शब्द है। आप लोग ध्यान दीजिए, जो आज प्रवचन सुन रहे उसका ध्यान होना चाहिए, कथा में ध्यान दो। उसको कहते हैं पश्यन्ति शब्द, जो वक्ता को मालूम है मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, केशवानंद महाराज क्या कहना है, वो अपने अंदर उसका खिचड़ी पका रहे हैं, अपने अंदर उसका खिचड़ी पक रहा है, अपने आप बन रहा है। क्योंकि बचपन से लेक्चरर हूँ, 14 साल से लेक्चर देता हूँ, इसलिए लेक्चर देते देते लेक्चर में क्या क्या बोलना है वो अपने आप खिचड़ी तैयार हो रहा है, अंदर तैयार हो रहा है। लेकिन दूसरा आदमी इसको नहीं सोच सकता कि महाराज जी क्या सोच रहे हैं। ठीक है? तो मन बुद्धि अहंकार, तो ये सटल बॉडी है, ये सूक्ष्म शरीर है। मन है, बुद्धि है और अहंकार है। क्या सर्दी लग रहा है तो ये पंखा बंद करते हैं? पंखा चलने दे। तो मन बुद्धि और अहंकार, उसको थोड़ा बंद कर दो ना, वही वाला उनको, उसको बंद करने के लिए देखते ही समझता है कि वो कपड़ा ऐसे पकड़ रहा है क्योंकि ठंडा लग रहा है। समझना क्या जरूरत है? इधर इधर है ना, नीचे देखो, नीचे, अरे उधर आजा, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर
मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों मिलकर एक सूक्ष्म शरीर बना, जिससे हमारा संकल्प विकल्प होता है। ये उधर से होगा फिर। ये पंखा को बंद कर दो ना, ये पंखा उनको ठंडा। कहाँ? अरे उसको बंद करो और एक 3 नंबर, बस आज इसको रहने दो। मन, बुद्धि और अहंकार, तो क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर, ठीक है ना। अहंकार के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का प्रतिष्ठा करते हैं। या हमें ये अनुभव है, ये ज्ञान है, ये चेतना है, ये उपलब्धि है, ये तपस्या है, ये ध्यान है, ये साधना है। तो ये अहंकार हुआ। अहंकार भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सात्विक अहंकार, एक राजसिक अहंकार और एक तामसिक अहंकार। ये त्रिगुणात्मक जगत है। जो भी कुछ हमको मिला, ये सारे इंद्रियां भी 3 गुणों से है, सत्व रज तम गुणों के द्वारा ही शरीर बना है। लेकिन उसमें पंचभूत है और सूक्ष्म शरीर है, और उसके बाद अपरयोनितस्तन्नं प्रकृतिं विद्धि में परम। इसके अलावा एक तत्व और है, वो है आत्मा। आत्मा के बिना ये सारे बेकार है। जो शरीर है, जो मन, बुद्धि, अहंकारात्मक सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। और जो आत्मा है, अगर वो नहीं है तो स्थूल सूक्ष्म शरीर इनवैलिड है, वैल्यूलेस, कुछ नहीं है, तुम बेकार हो जाओगे। तो इसलिए क्या है कि मन, बुद्धि, अहंकार, सुनो, ध्यान देकर सुनो, क्या बता रहे हैं, क्या बोला अभी, दिमाग में नहीं आया? तुम्हारा जन्मदिन का उत्सव हो रहा है ना, समझ नहीं रहा है? तो परसों हो गया ना, अब यहाँ हो रहा है, कंटिन्यू होता रहेगा। तो बात यह है, मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है, रक्त, और एक स्थूल शरीर है, और एक आत्म शरीर, आत्मा। तो आत्मा एक ऐसे चैतन्य तत्व है जो सारे सत्ताओं पे, जैसे सूर्य उठकर सब जगह में लाइट फैलता है, सूर्य की तरह हमारा आत्मा है। आत्मा सूर्य की तरह सारे शरीर में उसका प्रकाश खिलाता है। तो आत्मा है, चाहे एक बाल कोई खींचे तब भी दर्द अनुभव होता है। क्यों? आत्मा है, आत्मा के बिना ये अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मा का बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीवन में है। इसलिए देखिए, जो मन, बुद्धि, अहंकार और ये सब के बाद धर्म प्रज्जित कईतव। धर्म क्या है? बोले धर्म वही है जिसमें कोई कपटता ना हो, समझ लेना। धर्म प्रज्जित कईतव, जिसमें कपट भाव है वो धर्म नहीं है। गुरु के सामने कुछ और बोले, सोचा कुछ और, विचार किया कुछ और, मंत्र जपे कुछ और, जिसका मन, जिसका हृदय, जिसके बुद्धि, जिसके चेतना सब कुछ मिला है, मतलब सब एकत्रित एक ही भाव से सम्मिलित है, तो उसके लिए साधना सहज हो जाता है। उत्तमा सहज अवस्था। साधक उत्तम कौन है? जिसका जीवन सहज हो गया, जिसमें कोई जटिलता नहीं है, कपटता नहीं है, मिथ्याचार नहीं है, कदाचार नहीं है, व्यभिचार नहीं है, दुराचार नहीं है, वही वास्तव में साधु है। तो इसलिए व्यास जी कहते हैं कि धर्म प्रज्जित कईतव। धर्म क्या है? बोले जिसमें कोई का प्रज्जित, प्रकृष्ट रूपेण उज्जित कईतव। प्रकृष्ट रूपेण, कईतव माने कपटता, कपट भाव को जिसने उज्जित माने थ्रो किया, फेंक दिया, बोले इसको जीवन में हमारा कोई जरूरत नहीं। जिसने ये कपटता को फेंक दिया, जैसे हम थूकते हैं तो उस पर देखते नहीं क्या थूका, बीमारी होता है तो देखते हैं अरे खून निकला तो नहीं है, लेकिन वैसे थूकने पर कौन देखता है कि हमने कैसा थूका, अच्छा थूका या बुरा थूका, देखता नहीं है।
तो इसलिए जो जीवन से थूक के बराबर, निष्ठीवत थूक के बराबर जिसने सारे झूठों को फेंक दिया, समझ गए, सारे कपट बुद्धियों को जीवन से त्याग दिया, वही साधु है। धर्म प्रज्जित कैतव परम निर्मत्सरणाम शताम। दो निर्मत्सर साधुओं का धर्म है निर्मत्सरणाम शताम। साधु कौन है और लक्षण कहा गया, एक तो जिसने कपटता को फेंक दिया, है ना, निर्मत धर्म प्रज्जित कैतव परम निर्मत शराणाम। निर्मत्सर जिसमें कोई मत्सरता ना हो। कपट कई प्रकार के होते हैं, कुछ हम चाहते रहते हैं भगवान से, कुछ बोलते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, मन से बुद्धि से हम एकाग्र नहीं हो पाते, और यही हमारा पतन का कारण है, यही हमारा दुख का कारण भी है, यही हमारे साधना के उन्नति में बाधक है। साधना की उन्नति को कैसे करें जब सब कुछ सुंदर हो जाए, भावना सुंदर, मन सुंदर, बुद्धि सुंदर, संकल्प सुंदर, सोते हुए सुंदर की भावना करें, कीर्तन करते हुए, शयन करते हुए, स्नान करते हुए, भोजन करते हुए, संसार के सारे कामों में, संसार की सारे कामों में जब अपने मन को हम संपूर्ण रूप से भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान से मंत्र को मननात् त्रायते, निरंतर मंत्र का जप करते रहना बहुत जरूरी है। जो मन से जो भगवान का भजन करे वही साधक है, और उसका मन ही कामना वासनाओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए धर्म प्रज्जित कई तब, धर्म प्रज्जित कई तब परम निर्मत्सरणाम शताम। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मीलनम श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वर सद्य हृदयवरुद्धते शुश्रूषुभि तत्क्षणा। धर्म प्रज्जित कैतव, धर्म क्या है, जो प्रतिष्ठ रूपेण उज्जित कैतव। ये दो एक दूसरी बात हुआ, जिसमें कोई मत्सरता ना हो, जेलासी ना हो। हमने जिंदगी में ऐसा देखा, साधु तो बन जाता है लेकिन जेलासी नहीं छोड़ पाता है। जेलासी बहुत बड़ी, कोई आगे बढ़ता है तो सोचता है कि इसको कैसे नीचे गिराया जाए, नीचे कैसे गिराया जाए। ये संसार बहुत भयंकर है। इसमें से इसे भगवान कहते हैं संसार भ्रमिते कोनो भाग्य के हो तरे। कोई कोई इसमें से तरता है, कोई कोई इससे मुक्त हो पाता है। क्यों? नदीर प्रवाहे जेमन काष्ठ लागे तीरे। नदी के स्रोत में, शारदा नदी में लकड़ी काट करके फेंक देते हैं, तो लकड़ी से ठक्कर करते करते जो किनारे आके लग गया तो आदमी उसको उठा लेता है। उसी प्रकार ये संसार प्रवाह में अनंत जीव बहता हुआ जा रहा है। संसार भयंकर है, संस्कृति संसार। उसमें से कोई कोई साधु कृपा भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। अगर कभी साधु मिल गया, साधु के चरण में समर्पण कर दिया, गुरु के चरण में अपने को समर्पण कर दिया। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं यही आमी समर्पिलाम तुम्हारी। ईश्वरपुरी बात को कहते हैं यही आमी समर्पिलाम तुम्हारी, कृष्ण प्रेमामृत पान कराओ हमारी। तुम्हारे चरण में हम अपने को समर्पित कर देते हैं, तुम हमें कृष्ण प्रेमामृत का पान कराओ। किसे कहते हैं? आपने गुरु को। तो गुरु के चरण में अपने को समर्पित कर देते। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सेई देह करे तार चिदानंदमय, चिदानंद देहे कृष्णेर चरण भजे। कृष्ण चरण का भजन तभी होगा। इसलिए कहते हैं धर्म प्रज्जित कोई तो मेरे सामने आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ,
अरे चेला को छोड़ के नहीं होगा, यहाँ हिलन दे के आराम से बैठो। हाँ ये देखो, तो धर्म प्रज्जित कही तब तो निर्मत्सराणाम सता। साधु कौन? जिसमें कोई मत्सरता नहीं, कपटता नहीं, मात्सर्य नहीं, जलासी नहीं। जो दूसरे पर जलस करते हैं वो कभी साधु नहीं होते। साधु वह शंका में आता ही नहीं है। साधु सबका मंगल कामना करेगा। साधु जैसे अपना मंगल चाहता है उसी प्रकार सबका मंगल चाहता है। बोले केशवानंद महाराज क्या करते हैं? बोले यही सबका मंगल चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं। लेकिन हमारे गुरु भाई का शिष्य काल फोन किया तो मैंने कहा बीएलआरओ को बोल देना मैं आऊंगा, अगर काम नहीं किया तो मेरा एक डंडा है, चामुंडा का डंडा, उसको मैं सिर में मारूंगा। जरा ये कि एक बार गया मैं काम नहीं हुआ, दूसरा बार जाऊंगा तो मारूंगा ऐसे। बोले महाराज फिर तो हम तृणादपि श्लोक से अलग हो गए, तृणादपि सुनिचेन। तो ये कैसे हुआ? अरे सुनो, चोर के चरण में गिरोगे, बदमाश आ गया, डाकू आ गया, बदमाश आ गया, धूर्त आ गया, कपट आ गया, मिथ्याचारी आ गया, उसके चरण में तृणादपि सुनि श्लोक का कोई अर्थ नहीं होता। उसको तृणादपि सुनि हम होके बदमाश को बदमाशी करने का मौका दे दे, भैया तुम बदमाश हो, हम प्रणाम करते हैं, वो तो और तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। तो हम दुनिया में काम करते हैं ऐसे बदमाशों को आगे बढ़ने के लिए देते हैं। मैंने कह दिया कि मैं आऊंगा तो तुम्हारा कोई वो नहीं होगा, कोई विश्वास नहीं, मैं क्या करूंगा। क्यों? साधु है, डरते नहीं है किसी से। साधु को किसी से, मौत से डरते नहीं, भगवान से डरते नहीं, भगवान को प्यार करते हैं। भगवान हमारा प्रिय है, लेकिन डरने का चीज नहीं है। तो इसलिए मृत्यु से भी नहीं डरते। मरने से पहले अपना समाधि मंदिर बना लिया, मूर्ति बना लिया, प्रति मंदिर में बैठा दिया, मकराना से सबसे कीमती पत्थर ला के मूर्ति बना के रख दिया। क्यों? हमें मौत से डर नहीं लगता। मौत से जो डर गया वो साला मर गया, बेकार हो गया। समझ गया? पाका शिष्य बनना है, इसके लिए पक्का होना चाहिए। निर्मत्सराणाम सदाम वेदम वास्तवम। वेदम, विद धातु का अर्थ है जानना, नॉलेज। किसे जानना? वास्तव को, जो जिसका एग्जिस्टेंस चेंजेबल नहीं है। भगवान का जो अस्तित्व है वो कभी चेंज नहीं होते, बदलते नहीं है। हम लोगों का बदलता रहता है, बदलता रहता नहीं। बचपन में एक प्रकार, फिर कौमार काल का अलग, किशोर काल का अलग, यौवन काल का अलग, प्रौढ़ काल का अलग, ये है ना। देहीनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुज्जन्ति। समझ लो क्या बोले? देहीनोऽस्मिन् यथा देहे, शरीर का जैसे परिवर्तन होता है। माँ के पेट से जन्म लिया एक प्रकार का, 6 महीने में कुछ और चेंज हुआ, 11-12 महीने में कुछ और चेंज हुआ, छोटा छोटा दांत निकलने लगा, और फिर 1.5 महीने में, 1-1.5 साल में चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, फिर बहुत कुछ बोलने लगा। ये धीरे धीरे जीवन ऐसे बदलता रहता है। छोटे काल में खेलते खेलते जिंदगी बीत जाता है, बड़े काल में फिर बाप माँ कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो नहीं तो जीवन बेकार हो जाएगा, पढ़ो। फिर यौवन काल आया, बोले शादी करो। लेकिन शादी करके बाद में क्या होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। शादी करके क्या होगा? शादी करके सुखी होगा कि दुखी होगा? बहुत बड़ी बात है। केशवानंद महाराज ज्योतिष सम्राट है, वो कहते हैं आप मेरे पास आओ, मैं बता दूंगा कितना दुख है कितना सुख है। अगर मैं कहता हूं कि इससे ये शादी नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। अगर भगवान स्वयं उतार के आके बोले कि नहीं तुम इसमें शादी कर लो, हम कहते हैं कि भगवान भी बोले तो शादी नहीं करना, मैं जो कहूंगा उसी को मानना। भगवान भी बोले, भगवान बोलते नहीं, इसीलिए कहता हूं क्योंकि ये ज्योतिष चक्र ऋषियों का विद्या है, ज्ञान है। इसलिए इन विद्या को जिसने प्राप्त किया वो जो बोलेगा उसको मानोगे, नहीं तो साले मरोगे।
दुखी हो गए। कितने कितने बदमाशों को मैंने उपदेश दिया, जिसने मेरे उपदेश ना मान के शादी किया वो दुखी हुआ, दुखी हो रहा है, रो रहा है, डिवोर्स हो गया। एक लड़के को मैंने कहा शादी मत करो भैया, 2-3-4 बार उसका जोटोक मिलाया, मैचिंग कराया, लेकिन वो इंजीनियर था। वो बाद में बोला माँ ये सब हम नहीं मानते, हम जा रहे हैं, हम विदेश से आ रहे हैं, शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। आके एक लड़की को देखा, माँ बोले महाराज हम शादी करेंगे। सोच लीजिए मेरा जीवन का ये सब एक्सपीरियंस है, हजारों एक्सपीरियंस है। तो शादी करेंगे, ठीक है। उसके माँ ने कहा बेटा आ रहा है शादी करने के लिए एक लड़की के साथ। बोले जोटोक मिला है? बोले नहीं मिला है। वो कहता है हमको जोटोक फोटोक नहीं चाहिए। महाराज हर बार माना कर देते हैं कि इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इसलिए महाराज से कोई मैचिंग नहीं करानी है, समझ लीजिए। हमने कहा बात तो ठीक है, वो लड़का जो कहता है वो तो ठीक ही कहता है, बुद्धि ज़्यादा है ना, वो मॉडर्न एजुकेटेड है तो इसलिए बुद्धि ज़्यादा है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते, समझ लीजिए। फिर वो लड़का आया, एक लड़की को देखा, उससे शादी कर लिया। शादी करने के बाद वो लड़की अपने घर में किराएदार एक क्रिश्चियन लोग थे, तो उन क्रिश्चियन लड़की को लेकर के ससुराल गई और पति के बिस्तर में, फूल सज्जा के रात पति के बिस्तर में नहीं सोई, उसी लड़की के साथ सोई। फिर सोई, फिर पति कहता है क्या बात है हमारे साथ फूल सज्जा आदि नहीं होगा? बोले हमारा जो पीरियड है ना वो 15-16 दिन से कम खत्म नहीं होता, इसलिए अभी हमको समय लगेगा ठीक होने के बाद। लड़का पर 16 दिन भी शादी नहीं टिका, सारा सामान देके उसको उसके मायके में भेज दिया। 16 दिन नहीं गुजर पाया। ऐसे हजारों घटनाएं। एक माई आई, बोला हमारे लड़की का मैचिंग देख लीजिए। मैंने कहा इसका शादी इससे, इस लड़के से करोगे तो मरोगे, कभी नहीं करना है। बोले महाराज क्या बोलते हैं? ये तो सारा शादी पक्की हो गई, बिल्डिंग बुकिंग हो गया, शादी का कार्ड छप गया, सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जो किचन का काम करने वाला जो कैटरिंग जो करते हैं उनसे भी बात हो गई, सारा सब कुछ अरेंजमेंट हो गया, हम कैसे बंद करें? अरे करोगे नहीं, लेकिन शादी भी टिकेगा नहीं। तो क्या हुआ, वो लड़की इतनी सुंदरी थी, 3 महीना भी नहीं टिका, वो डिवोर्स हो गया। एक लड़की को कहा शादी मत करो, तो उसके पति जाके ससुराल में शादी के रात के बाद उसी रात को हार्ट अटैक होकर के बाथरूम जाते समय गिर के मर गया। मैंने कहा इसके साथ जीवन कभी नहीं टिकेगा। इसलिए जब हम कहते हैं तो इसको ध्यान रखो कि केशवानंद महाराज जो कहेगा उसको भगवान भी काट नहीं सकते। दुनिया का ज्योतिषी क्या चीज है? केशवानंद महाराज जब कहता है कि ये बात होना है, हो के रहेगी, ये होनी है, होनी चुकनी नहीं, आन होनी नहीं, समझ गए? होनी चुकनी नहीं, वो चुकेगा नहीं, आन होनी नहीं। जो आन होनी है वो होगी नहीं, जो होनी है वो चुकनी नहीं। जो तुम्हारे भाग में लेके आए हो उसको तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, समझ गए ना? जो तुम भाग में लेके आए हो वो तुम्हें अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ सारे कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई तुम्हें रक्षा नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में रख करके जीवन में चलो। ये जीवन परम मंगलमय भगवान से मिला है, और इसीलिए कहा धर्म प्रचित कई तब परम निर्मत शरणम शतम वेद्यम। वेद्यम माने जानो, वास्तवम वास्तव को जानो, जो सत्य है, जो तुम्हारे अंदर आत्मा है वही तो वास्तव है, और शरीर मन बुद्धि ये सब तो चलायमान है। अभी मर गया, हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो गया तो सब बेकार हो। वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम अस्मिन ग्रंथे भागवते प्रतिपादितम। ये भागवत कथा हम करेंगे 5 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर से 1 महीना 3 दिन यहाँ भागवत कथा करेंगे। सारे संपूर्ण भागवत का प्रवचन करेंगे, संपूर्ण भागवत का। ये तो एक श्लोक के ऊपर बोल रहे हैं, तो संपूर्ण भागवत में 18,000 श्लोक है, उसका जिस्ट हम 1 महीना 3 दिन में बोलेंगे। और वो भागवत हम सालों साल टेलीविजन में बोलते रहते हैं। हमारे जो शिष्य है वो सब जानते हैं
कि महाराज जी भागवत चलता है, एक एक अध्याय खत्म करने में 1 महीना चला जाता है, एक एक अध्याय। तो 18 स्कंद है, 12 स्कंद भागवत है, तो 12 स्कंदों में जो 18,000 श्लोक है, तो एक एक 1000 श्लोक, अगर 500 श्लोक बोलने में भी 1 महीना बीत जाता है, मतलब उसके मेन श्लोक बोलने में, सब श्लोक की। तो सोच लीजिए, यही जीवन है, यही वास्तव है, यही परम सत्य है। इसलिए ये जीवन भगवान को भजन करने के लिए मिला है। वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। व्यासदेव कहते सुनो, ये अस्मिन ग्रंथ भागवते प्रतिपादितम, भागवत ग्रंथ में जो मैंने प्रतिपादित किया है वो शिवद है। शिवद माने मंगलप्रद, कल्याणमय, सबके लिए मंगलमय जो वस्तु है, यह अस्मिन ग्रंथे भागवते प्रतिपादन किया गया है। इसलिए शिवदम तापत्रयम, बोले भागवत श्रवण करने से क्या होगा? बोले तापत्रयोन्मूलनम, जो त्रिताप संसार के जीव को भोगना पड़ता है ना, आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक, ये जो त्रिताप, ये 3 ताप, 3 प्रकार के दुखों से जो दिन रात झेल रहा है जीव, ये दुखों से मुक्ति नहीं मिलती, एक दुख छोड़ के दूसरा आ जाता है। तो ये त्रिताप बोलते तापोत्रयो उन्मीलनम, ये त्रिताप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी अगर साधु के मुख से भागवत सुनोगे। कार्तिक व्रत का महीना है, लक्ष्मी पूजा के दिन से प्रवचन शुरू होगा और रास के दिन 5 अक्टूबर को गीता महायज्ञ के साथ भागवत का समाप्त होगा और गीता महायज्ञ भी पूर्ण होगा। 5 नवंबर को 5 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर ये कंटिन्यू भागवत प्रोग्राम और उसके साथ गीता महायज्ञ। सभी भक्तों को सूचित करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, ये बुकिंग करना आपका कर्तव्य है, आप बुकिंग कर लीजिए। मैं पहुंच रहा हूं अप्रैल के 26 तारीख से हमको कलकत्ता में पाएंगे आप लोग। 26 तारीख থেকে আমাকে কলকাতায় পাবেন। बांग्ला में बोल दिया, समझ गए? बांग्ला समझ नहीं है? अरे 26 तारीख से हमको कलकत्ता में पाएंगे, पावेन माने पाएंगे, ठीक है? प्रसाद पाएंगे नहीं, महाराज को पाएंगे, महाराज को मिलेंगे, ठीक है? तो ये भी बात है। तो 26 तारीख को महाराज मिलेंगे कलकत्ते में। इसलिए सभी भक्तों को सूचित करते हैं कि आप लोग तैयार हो जाइए और अपने मित्रों को ये प्रोग्राम, जो भी जितने भी हमने देखा, बहुत लोग ऑनलाइन आ गए हैं और 2 मोबाइल से समान रूप से असंख्य लोगों को हम देखते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं सब आप लोग हमेशा इस प्रोग्राम को फॉलो करें और सबको भेजें। और इसलिए कहता है, मेरा कहना है, वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तो त्रिताप आग से तुम मुक्त हो जाओगे। आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक जो ताप है, जो कष्ट है, उससे मुक्त होने का एक ही उपाय है, साधु के मुख से भगवान की कथा श्रवण करना। उसके बाद श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, कौन कहते हैं? महामुनि, वेदव्यास, जो वेद का विभाजन करने वाला। वेद व्यास इसलिए कि वेद का विभाजन किया, व्यास माने विभाजन, विभक्त करना, अलग कर देना। ऋग्वेद, पहले तो ऋग्वेद ही था और कोई वेद नहीं था, फिर उसको उन्होंने विभाजन किया। ऋग्वेद का बहुत सारे टीकाएं हैं। सबसे बड़े ऋग्वेद का टीकाकार है कौन? महर्षि हमारे कौन है जानते हैं? यो योग के महान ऋषि है। कौन है? कौन है योग के महर्षि? महर्षि पतंजलि। इतने बड़े व्याख्याकार जो पृथ्वी में कभी नहीं आया, उनके सारे व्याख्या मिलते भी नहीं है। और उनके ऋग्वेद के ऊपर उनके जो टीका है, व्याख्या है, ये मतलब वेद के समान ऐसे कई वेद बन सकते हैं। और व्यासदेव के प्रधान शिष्य है ये महर्षि पतंजलि, और उन्होंने लिखा योग दर्शन। सारे विषय को योग दर्शन में समेट करके संसार को दे दिया। योग दर्शन के ऊपर भी विचार करेंगे।
ये आपको आप सबको समझना है कि योग दर्शन के ऊपर भी महाराज हमको सुनाएंगे, गुरुजी सुनाएंगे। আপনাদের যোগ দর্শন থেকে শুরু করে সব ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে পুরো যোগ রয়েছে। যারা ভাগবত কথা বলে তারা তো সব পড়ে না, না मूर्खेर अशेष दोष बोले जाने। बोली महाराज क्या कहा, बोली महाराज ने कहा कि 100 मूर्ख लेकर के स्वर्ग में जाओगे तभी तुमको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मूर्ख तुमको उत्पात मचाएगा, परेशान करेगा। और एक पंडित लेकर के अगर नरक में भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन 100 मूर्ख को लेकर के मैं नरक में स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहूंगा। समझ गए? इसलिए मूर्खों के साथ नहीं मिलना है। मूर्खों से मिलोगे तो तुम्हें मूर्ख बनाएगा, शराबी से मिलोगे तो शराबी बनाएगा, गांजा पीने वालों से मिलोगे तो गांजा पिलाएगा। इसलिए ये सबको फोन कर दिया। हाँ? तो इसलिए आज ये बात है कि क्या कहते हैं, वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयन मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। किसने कहा ये बात? बोले महामुनि वेदव्यास, जो किसके पुत्र है? महर्षि पराशर के पुत्र है। जो पराशर मत्स्य गंध्या से विवाह, उनसे पुत्र के रूप में व्यासदेव का जन्म हुआ। इसलिए ये व्यासदेव महामुनि कृते किंबा परईश्वर, भगवान स्वयं उस पर प्रकट होकर के ये ज्ञान प्रदान किया है। सद्य है सद्य हृदय अवरुद्धते शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा, सद्य हृदय अवरुद्धते। जिसको भी भागवत कथा श्रवण में रुचि हुई, भगवान को प्यार करने लगा, भगवान से मन लगने लगा, बुद्धि भगवान से जुड़ गई, भावनाएं जुड़ गई, हृदय भगवान से जुड़ गया, मन जुड़ गया, तो क्या होता है? बोले उसके हृदय में भगवान उसी समय प्रकट हो जाते हैं। जैसे आंख बंद करके हम जब देखते हैं, आंख बंद करते ही दिव्य भगवान का सत्य 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 रूप में बोल रहा हूं, व्यास गद्दी में बैठ करके भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं मेरी चेतना में। यहाँ से दिव्य लाइट निकलता है कभी कभी। बुधवार को एक दिन हमने आंख बंद करके मेडिटेशन में बैठा तो यहाँ से ग्रीन लाइट निकलने लगा, ग्रीन लाइट। हमने कहा ये ग्रीन लाइट क्यों निकल रहा है? फिर हमने सोचा ये तो बुधवार है, इसीलिए बुध का लाइट जो है निकल रहा है। तो इसीलिए जीवन में जो तपस्या करेगा उसका फल तो उसको मिले, जो मेडिटेशन करेगा उसको, तो जो योग करेगा उसका जीवन तो भगवान से जुड़ ही जाएगा। तो प्रथम कथा আপনাদের বলে দিই যে আগামী বছর 3রা অক্টোবর কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু, 4 অক্টোবরে পৌঁছাবো, 5ই অক্টোবর থেকে ভাগবত শুরু হবে। এই বিরাট প্রস্তুতি পর্ব, সবাই বুকিং করবেন, সবাই তৈরি হয়ে যান। মনে রাখবেন 106-7 দিন যাওয়া আসা নিয়ে পুরো প্রোগ্রাম, পরিক্রমা, রিজার্ভেশন আদি সব নিয়ে 1 মাস 7 দিনের প্রোগ্রাম। 1 মাস 7 দিনের প্রোগ্রামে মাথা পিছু 25,000 টাকা করে লাগছে, माथा पर हेड 25,000, और जो 15 दिन रहेगा उनको 12,000 रुपये देना होगा। जो कहते हैं कि हम छुट्टी के टाइम रहेंगे लक्ष्मी पूजा से काली पूजा तक, उनका जाने आने के किराए के साथ उनका 12,000 रुपया लगेगा। और जो परिक्रमा करेगा उनको 28 तारीख को रवाना होकर 29 तारीख को यहाँ पहुँचना है, और उनके लिए 9,500 रुपया लगेगा परिक्रमा और भागवत कथा श्रवण के लिए। ये প্রোগ্রাম আপনারা সবাই শুনে নিলেন, যে সবাইকে অ্যানাউন্স করবেন, সবাই শেয়ার করে দেবেন, সবাই ভালো থাকবেন, সবার জীবন কল্যাণময় হোক। আজকের ভাগবত অনুষ্ঠানে আজকের এই হল, এখন কিন্তু মহেন্দ্র যোগ শুরু হয়েছে, অমৃত যোগের পর মহেন্দ্র যোগ, মহেন্দ্র ক্ষণ, সেই ক্ষণে আমরা এই হলের উদ্ঘাটন করলাম। भक्ति योगाश्रम की, भक्ति योगाश्रम की, भक्ति योगाश्रम की, श्री राधा माधव की, गौर सुंदर की, हरिनाम संकीर्तन की, समस्त भक्त वृंद की जय जय श्री राधे।